हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। हमारे ये लास्ट मॉड्यूल में हम लोग अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड विच इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट वी स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं। अपन अभी फिलहाल के लिए हम लोग अभी एक लास्ट मॉड्यूल में है जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, विच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Now, students, what exactly do we mean by the term reproductive health? See, understand the what initially when we talked about the concept of reproduction as to why is it so important, हम लोगों ने उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानी है that the aim or the ultimate purpose of human reproduction is nothing but to continue the species के continuation के लिए and also to ensure that that particular organism remains in the race. So having said that, apart from continuity of species, it is also very important for maintenance of the sexual hygiene, also ensuring the health and the well-being of an individuals, and also we have to make sure that good sexual practices are there in place. For this, our government of India also picks out multiple types of initiatives, and जिस initiatives के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैसेट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपने को जानना है, विच इज कॉल्ड एज द RCH. Now, students, what is RCH? RCH is reproductive and child health programs which are generally launched by the government of India and ensuring that the sexual well-being, understanding what is sex education, knowledge about the reproductive systems, and what is hygiene, what is sexual hygiene, all of these aspects are covered under this umbrella. सो स्टूडेंट्स, एनी फर्दर डिले अवॉइड करने से बेटर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज द बर्थ कंट्रोल। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय बर्थ कंट्रोल? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बर्थ कंट्रोल, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द if say for example we a couple indulges into copulation, into sexual intercourse, what are the methods available by which that person, that couple may not want to have the baby? So उस process में हमारे पास क्या क्या methods available है, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे is nothing but the temporary methods. Now what exactly is there in temporary methods, students? Temporary method are those which आर रिवर्सेबल इन नेचर। ओके, मतलब ये जो सारे प्रोसेस, जो मेथड्स हम लोग बात करेंगे, ये सारे के सारे रिवर्स हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज मेथड्स? द वेरी फर्स्ट मेथड, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इज नथिंग बट द नेचुरल मेथड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय नेचुरल मेथड? स्टूडेंट्स, वी नो दैट फीमेल्स हैव अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, isn't it? Females have a menstrual cycle about approximately 28 days, of which 14th day is the ovulation day. Now, apart from 14th day, okay, see, if at all you want to have a baby, it's advisable and it's best suitable for the sperm to reach the female reproductive system during the time of ovulation. But if we don't want to have a baby, you can have what is called as a natural method. Now, what is natural method? Natural method is a period which is before or after ovulation. Okay, before or after ovulation. So say for example we are having the ovulation on 14th day, so it can be 14, say for example, plus minus 3. Okay, 3 to 4 days here and there. It is what is called as the natural method, wherein you can control the release. The ovum is not there in the system, ovum system में नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकेंड मेथड इज व्हाट इज कॉल्ड एज द coitus interruptus. स्टूडेंट्स, coitus interruptus मतलब क्या? इट इज इन सिंपल टर्म्स, इट इज withdrawal of penis before ejaculation. Okay, just when a male is about to release the sperms into the female reproductive system,
the male might withdraw the penis. But the only thing here is this method and the natural method what we discussed is not 100% safe. Okay, there are chances of failure, so it is not a method which can bring about 100% results, and therefore it should be practiced cautiously. And cotius interruptus in a way is just an obsolete method, it is no more used. Okay, because there are chances of still fertilization, because ejaculation होने से पहले you have a transparent fluid which has been released from the seminal vesicle, and that is called as the pre-ejaculatory fluid. This pre-ejaculatory fluid may have sperms which can in turn lead to the process of fertilization. So ये method जो हम लोग यहाँ पे discuss कर रहे हैं ये full proof तो नहीं है, ठीक है। थर्ड मेथड कौन सा है, लैक्टेशनल एमनोरिया। अभी लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब क्या कि इन जनरल फीमेल्स तब तक के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको नहीं आता है जब तक वो लोग लैक्टेटिंग है। लैक्टेटिंग मतलब क्या, लैक्टेटिंग का सिंपल मतलब ये है कि जब तक मम्मी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तब तक she might not have the menstrual cycle, and that can ensure that there is no ovum and therefore you can control the birth. But the only thing here is, again there is a possibility that this method might fail. Okay, because there is a chance that यहाँ पे ovum आकर fertilization हो सकता है. So therefore even this method does not guarantee 100% success. Next, you have what is called as spermicide, students. Spermicides, what do you mean by the word? If you look at it properly, word को आप देखेंगे तो क्या लगेगा? Spermicides are any type of chemicals. Okay, they are any type of chemicals. These chemicals can be either in the foam form, it can be in the jelly form, okay, which can stop the process of the movement of the sperm. In short, it might kill the sperm. Okay, so to reduce the chances of fertilization. So anything which can cause the death of the sperm cell are categorized under what is called as spermicides. Next, you have what is called as the mechanical means. Mechanical means are little bit safer as compared to the temporary methods listed above. मैकेनिकल मेथड थोड़े से बेटर prospects हम लोग को better success rates देते हैं. And to talk about the mechanical methods, the very first method is what is called as the condoms. Now condoms are those type of method, it is a type of a mechanical method where you're obstructing the release of the sperm before the female reproductive system. So no sperm enters into the female reproductive system. FRS में female reproductive system में sperm enter नहीं होते, and this condom in other words is also called as nirodh. Okay students, this is one method. Second is what is called as diaphragm, cervical caps, or also called as vaults. Now what are these? These are some instruments or kind of a device which can be implanted or put inside the female reproductive system, thereby stopping the process of fertilization. So मान लो कि sperm अगर FRS में enter भी हो जा रहा है, फिर भी because there is some kind of a barrier वहां पे, तो इसके वजह से sperms fusion नहीं कर पाएंगे. So that is what is diaphragm. It can be in the form of rubber or latex or something like that. Then you have the third part which is called as the IUDs. Students, IUDs stands for intrauterine devices, which can be categorized into multiple forms. सबसे पहला is what is called as a Lippes loop. Then you have CUT. CUT stands for copper T. Then you have copper 7 and then you have multi-load 375. इसका दो जो लिपीज लूप है कॉपर टी है, इनका दो मैकेनिज्म्स अपने टेक्स्ट बुक में है, तो उसको जरा जान के लेते हैं. लिपीज लूप जो होती है ना, लिपीज लूप दे कैन एनहांस द phagocytic, they can enhance the phagocytic activity of WBC, okay, near the uterus, and thereby performing phagocytosis of sperm. Now what is this? WBCs के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कोई और सेल को निगलने की.
उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सो लिपीज लूप क्या करता है, इसी फैगोसिटिक डब्ल्यूबीसी को यूट्रस के इधर आने को मजबूर कर देता है। सो जितने ज्यादा डब्ल्यूबीसी यूट्रस के आसपास आ जाएंगे उतना ज्यादा फैगोसाइटोसिस होगा, उतना ज्यादा निगला जाएगा वो स्पर्म, एंड देयर बाय यू कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। The next point is what is called as an copper releasing IUD. इनका कोई basic high fund कुछ नहीं है. They are just responsible for reduction of motility of sperm. Okay, motility मतलब क्या स्टूडेंट्स, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। तो स्पर्म्स के मूवमेंट को ही वो क्या कर देता है, वो बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। बिकॉज स्पर्म का मूवमेंट स्लो हो गया है, सो इट माइट नॉट रीच टू द ओवम ऑन टाइम, एंड ओवम तक अगर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन, फर्टिलाइजेशन में नॉट अकर। सो ये दो मेथड्स है जो आपको पता होने चाहिए। देन यू हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ अदर आईयूडीज व्हिच आर कॉल्ड एज एन LNG-20 एंड आल्सो कॉल्ड एज प्रोजेस्टार्ट। Now these two hormone releasing IUDs are responsible to release hormones, okay? ये hormones release करके एक तो ovulation को inhibit कर देंगे, ठीक है, तो ओवम इस सिस्टम में नहीं आएगा, या फिर वो डिले कर सकते हैं ओव्यूलेशन को, तो जो स्पर्म का एंट्री और ओवम का जो ओवरी से एग्जिट है वो दोनों मैच नहीं कर पाएंगे, तो हॉर्मोन्स के लेवल को थोड़ा सा ऊपर नीचे मैनिपुलेट करके यू कैन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। सो इसके जरिए आप ये कंट्रोल किया जा सकता है, विच इज कॉल्ड एज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, विच आर टू। The number first is called as an LNG and दूसरा is called as a progestat। ना ये दो अपने हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हो गए। लिपिज लूप और कॉपर टी का मैंने आपको वहां पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अभी आगे जाएंगे विच इज कॉल्ड एज एन ओरल डिवाइसेस। ओरल डिवाइसेस आर दोज मेडिसिन जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, आप जो कंज्यूम करते हो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। स्टूडेंट्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो आप आपके माउथ से कंज्यूम कर कर फिर आप ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। स्टूडेंट्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होता क्या है एग्जैक्टली? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं दे कंटेन टू हॉर्मोन्स, वन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन एंड अनदर इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। Now these two hormones have to do with what is called as ovulation, ठीक है। सो ओवम के साथ मैनिपुलेशन कर कर ये लोग क्या कर देते हैं, स्पर्म के एंट्री के वक्त अगर बाय चांस ऐसा कुछ मैकेनिज्म हुआ है, ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ है जहां पे आपके पास सिस्टम में ओवम है, सो ये क्या करता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हार्मोन्स के लेवल को ऊपर नीचे कर कर ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगा या फिर ओव्यूलेशन को काफी ज्यादा डिले कर देगा। सो इट इज लाइक अ ओरल डिवाइस, इट्स लाइक अ पिल, इट्स अ टैबलेट फॉर्म जो आप कंज्यूम करते हो, और कंज्यूम करने के बाद ये दो हार्मोन्स का वहां पे मेजर रोल रहेगा। ठीक है, देन अदर यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, which one example is what is called as an implant। okay, implants are exactly similar to the pills, but ये क्या होते हैं पता है, they are like a matchsticks। okay, they are like a matchstick। okay, माचिस के काड़ी जैसा है ये, और ये मैचस्टिक क्या करते हैं, you are putting, okay, you are putting this inside the skin surface। okay, स्किन के सरफेस के जस्ट अंदर आप उसको इम्प्लांट कर दे रहे हो, एंड सेम फंक्शन करेगा जो पिल्स कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे सारे टेम्पररी मेथड। हमारे पास दो ऐसे भी मेथड्स है जो कि परमानेंट मेथड्स है। सबसे पहला परमानेंट मेथड इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्यूबेक्टमी। ओके, ट्यूबेक्टमी। स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर, अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया ये सारे रिवर्सिबल चीजें है ना, कि मतलब जो चीज रिवर्स हो सकती है, मतलब उसको आप एक बार आप फंक्शन में ला दिए तो वापस बैक ट्रैक पे आके नॉर्मल रह सकते हो, बट ये जो अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको परमानेंट मेथड बोलते हैं। परमानेंट मेथड्स आर नॉट एट ऑल रिवर्सिबल। सो देयरफॉर वन फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी क्या होता है? ट्यूबेक्टमी इज व्हेन यू आर रिमूविंग ऑफ fallopian tube. Removal, by mean the word removal, I can just write it in a different way. It's like cutting। ठीक है, कटिंग मतलब क्या, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे आपके पास मान लो ओवरी है, देन यू हैव दिस fallopian tube एंड देन यू हैव द
यूट्रस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ओके यहाँ पे मैंने कट कर दिया। जैसे कट कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, अगर मान लो कि ओवम को एंटर करना भी है यहाँ से इधर आना भी है, सो बिकॉज देर इज नो फर्दर पैसेज, सो दिस रिलीज ऑफ द ओवम विल बी इनहिबिटेड, एंड बिकॉज ओवम का रिलीज ही नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन का तो कोई बात ही नहीं आता। ये रहा ट्यूबेक्टमी। दूसरा जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा इट इज कॉल्ड एज वसेक्टोमी। Okay, vasectomy. Students, what is vasectomy? Vasectomy is nothing but cutting of vas deferens. Okay, vas deferens. You understand what is vas deferens? A final duct जहां से sperm just बाहर निकलता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के पास, सो वहां का डक्ट आप अगर आप कट कर देते हैं, सो इट कैन रिजल्ट इन कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द रिलीज ऑफ द स्पर्म। स्टूडेंट्स यू मस्ट नोट हियर यहाँ पे कि ये दोनों के दोनों मेथड्स बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं है। सो वंस दिस प्रोसीजर इज डन फॉर एवर, that person, that male or female, will remain sterile and may not be able to produce babies. So that is what it is. So ये दोनों permanent method है, tubectomy and vasectomy. Now moving on to what is called as the next concept, which is called as a medical termination of pregnancy, which is also called as MTP. And in layman terms, it is also called as abortion. See students, there can be certain instances where a female doesn't want to have the baby, right? मतलब क्या कि वो गलती से pregnancy हो गई है या फिर conscious effort था, but due to some reasons जहाँ पे आपको pregnancy अगर नहीं चाहिए, then what can you do? So government has laid down certain procedures, certain laws under which मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रेगुलेटेड। सो यहां पे आप क्या करते हो और क्यों करते हो वो जानने से पहले एक मेडिकल टर्मिनेशन के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड एज द एमनियोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में जहां पे मैंने तुमको गैस्ट्रुलेशन बोला था, आपको मैंने बताया था एमनियोटिक कैविटी, याद है? यस, तो एमनियोटिक कैविटी। अभी स्टूडेंट्स व्हेन आई टॉक अबाउट एमनियोटिक कैविटी ना, एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी के अंदर यू कैन हैव द बेबीज डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह, सो यू कैन डू क्रोमोसोमल एनालिसिस। ओके, यू कैन डू क्रोमोसोमल एनालिसिस। क्यों सर क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं भाई? दो चीज के लिए, एक तो सबसे पहले टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, मतलब क्या उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या, और दूसरा जो कि इलीगल है बट यू कैन फाइंड आउट विच इज द सेक्स ऑफ द बेबी, बिकॉज सी यू हैव क्रोमोसोम्स इनसाइड द फ्लूइड, तो क्रोमोसोम्स के थ्रू आप सेक्स ऑफ द बेबी फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज कंप्लीटली इलीगल इन इंडिया, बट amniocentesis can be done to find out disorders find out करने के लिए बहुत यूज होता है। So now conditions क्या क्या होनी चाहिए, ऐसे याद रखना है बच्चों, 0, 12, 20 का मतलब एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पे कंडीशन सबसे पहला होगा अगर 0 to 12 वीक्स का प्रेगनेंसी है, ओके, तो यू कैन कंटिन्यू विद एन एमटीपी, ओके, आप एमटीपी करा सकते हो। दूसरा कंडीशन ये है कि 12 से 20 है बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, ओके, मतलब एकदम 20, अभी व्हाट इज दिस, 20 वीक्स से अंदर अंदर का प्रेगनेंसी अगर रहेगा तो दिस ऑल्सो कैन बी क्वालिफाइड एज एन एमटीपी। इसके आगे थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है, अबॉर्शन करना काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है। सो देयरफॉर इट इज जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recognizes this and have given a time duration of 0 to 12 weeks for the best suit possible. Otherwise you can go from 12 to 20 weeks but not more than 20 weeks in anything, any range, any week which is less than 20. So for this time period you can perform what is called as an MTP. So moving on to the next topic after MTP is nothing but the sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease का मतलब क्या है? Which can be transmitted through sex और थ्रू कॉपुलेशन। हमारे सिलेबस में हमको दो चीजें पढ़नी है, वन इज कॉल्ड एज सिफिलिस, अनदर इज कॉल्ड एज द गोनोरिया। नाउ सिफिलिस स्टूडेंट, सिफिलिस जो है इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हिच इज कॉज्ड बाय वन टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रिपोनीमा पैलिडम,
ओके एक टाइप का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप बैक्टीरिया बोलोगे, और ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। इसको इंक्यूबेशन टाइम लगता है, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू शो द सिम्टम्स कैन बी अराउंड 3 to 4 weeks। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? देयर इज वन डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम जो आपको कुछ भी करके याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देयर इज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड शैंकर। ओके ना, व्हाट इज अ शैंकर? शैंकर इज अ टाइप ऑफ अ लीजन, एक जख्म होता है। ओके इट इज अ टाइप ऑफ अ लीजन, ऑलवेज रिमेंबर, एक टाइप का लीजन है ये। तो ये हो सकता है, देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज रैश, it can be fever, there can be hair loss, and in extreme cases there can be paralysis। कैसे प्रिवेंट करेंगे? सेक्स एजुकेशन एंड सेक्स हाइजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन केस एनीबॉडी सफर्स फ्रॉम सिफिलिस, द टैबलेट व्हिच कैन बी गिवन इज पेनिसिलिन। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा इज व्हाट इज कॉल्ड एज द गोनोरिया। गोनोरिया जो है इज कॉज्ड बाय, अगेन इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिये। ओके नाइजेरिया गोनोरिया, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गोनोरिया कॉज करता है। इसको इंक्यूबेशन टाइम कितना चाहिए? मेल्स के अंदर 2 to 14 days एंड फीमेल्स के अंदर 7 to 21 days टू शो द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या दिख सकते हैं? अगर मेल्स के केस में रहे तो देयर कैन बी ब्लॉकेज ऑफ द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक मतलब कॉमन पाथवे जो था ना, वही ब्लॉक हो सकता है। फीमेल्स के अंदर देयर कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अगेन इट विल बी सेम लाइक सिफिलिस, सेक्स हाइजीन एंड ट्रीटमेंट यू कैन स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज एन एंटीबायोटिक कॉल्ड एज द सिफिक्साइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको, दैट अ चाइल्ड विच इज born to a mother which is affected with gonorrhea may suffer from 2 diseases. One is called as gonococcal ophthalmia. It is something related to the eye. As you can see, ophthal is eye. And then you have what is called as gonococcal vulvovaginitis. ये क्या है? फीमेल्स, अगर ये बच्चा फीमेल है तो प्यूबरिटी के आसपास उसको एक टाइप का वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर जो उसकी मम्मी है उनको अगर गोनोरिया हुआ है तो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन, which is next is called as infertility. Now what is infertility? अगर किसी ने पूछा infertility का मतलब क्या है, so simple terms में infertility is when a couple is unable to conceive. ओके कंसीव मतलब क्या? अनएबल टू बिकम प्रेग्नेंट, उसको आप इनफर्टिलिटी बोलते हो। तो इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जो इस चीज को डील करता है, विच इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये हमारे पास मेथड्स है जिसके जरिए आप इन कपल्स को एक होप दे सकते हो, एक फेथ दे सकते हो कि यस इवन दे कैन कंसीव और दे कैन हैव द बेबी। द वेरी फर्स्ट विच इज वेरी वेरी कॉमन एंड तुमको ये पता भी होगा, विच इज कॉल्ड एज एन आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म जानते हो बच्चों? पता रहेगा क्या? देखो मैं बताता हूं। आईवीएफ स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यस करेक्ट, जिनको आता है एक्सीलेंट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑल्सो, इसको तो आपने सुना ही रहेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भाई क्यों बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। यू टेक द एग, यू टेक द स्पर्म, फ्यूज इट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाहर फ्यूज कर देना है और फिर उसको जाइगोट बनने देना। जाइगोट बनने के बाद 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज तक आने दो। ब्लास्टोमेर याद है? 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, यस, उधर तक आने दो और फिर यूट्रस में इम्प्लांट कर दो। ये जो प्रोसेस यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये वाला जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, दिस हैपेंस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ये जो फ्यूजन का बात किया ना, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसके वजह से नाम क्या पड़ गया? टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, सेकेंड इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ जिफ्ट। Now students, what do you mean by the word zift? Zift को थोड़ा सा समझते हैं। Zift is what is called as zygote intra-fallopian transfer. Okay, zygote intra-fallopian transfer. What do you do in this? You, if at all you have a blockage of the fallopian tube, अगर females के अंदर fallopian tube का अगर blockage है, then you can remove the egg out
fuse it with the sperm outside the body, that is in the lab, and then do what is called as an IVF, and IVF के जरिए वापस you can put it into the mother. So मतलब क्या, अगर बाई चांस ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब से बाहर आ नहीं पा रहा है, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला जो मेथड है या बाहर कर लो, फिर आप IVF कर लो और IVF से वापस इम्प्लांट कर दो। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जिफ्ट। जिफ्ट का दूसरा भाई इधर, जिफ्ट का दूसरा भाई इज व्हाट इज कॉल्ड एज गिफ्ट। ओके, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या रहेगा? यस, इट विल बी गैमेट इंट्रा fallopian transfer. Okay, it is gamete intra-fallopian transfer. What do? You take the ovum from some other donor. अगर by chance उस female को जिसको conceive करना उसके पास अगर healthy quality of ovum नहीं है, you can take the ovum from some other donor. You put that into the fallopian tube of some other female, and यहाँ पे आप क्या करते हो, ovum और जो sperm है उसको आप inject कर देते हो ओविडक्ट में। सो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में उसको इंजेक्ट कर दोगे, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर देयर इज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन ICSI. ICSI stands for intracytoplasmic sperm injection. ओके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो वर्ड खुद बोल रहा है, स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो यू टेक द सिंगल स्पर्म, ओके, सिंगल स्पर्म को, एक हाई क्वालिटी स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज कर देना है, ये लैब में ही होगा, एंड यहां पे आप करोगे नेचुरल पेनिट्रेशन ऑफ द एग। मतलब क्या, स्पर्म को आप बोल दोगे कि आप बोलो, स्पर्म को आप डायरेक्ट कर दोगे ओवम की तरफ, और स्पर्म खुद ब खुद ओवम को फर्टिलाइज करवा देगा। बट ये सब कहां पे हो रहा है? कंट्रोल कंडीशंस, लैब के अंदर। हाई क्वालिटी ऑफ स्पर्म आप सिलेक्ट कर रहे हो एज अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यू टेक द स्पर्म विच इज रिमूव्ड आर्टिफिशियली, बिकॉज उसका वर्ड देखो ना, artificial inseminate is to put the sperm into the FRS or the female reproductive system, but artificially मतलब you're removing the sperm out, where male is not able to conceive, the male is not able to help for the process of conceiving. So in that case what do? You can take the sperm artificially outside the testis of that male. You can introduce it artificially in the cervix of the female. ठीक है, आप कहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे? आप उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे सर्विक्स में। तो फीमेल के अंदर आप उसको सर्विक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द IUI. IUI stands for the intrauterine insemination. Now this intrauterine insemination में आप क्या करते हो, स्पर्म को यूट्रस के अंदर आप इंजेक्ट कर रहे हो। मैं क्यों यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपने क्या किया है, सर्विक्स में आपने पुश किया है स्पर्म को, और आपने जब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन किया तो आपने कहां पे पुश किया है स्पर्म को, यूट्रस में पुश किया। बाकी दोनों भी मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट हियर व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पर्म बैंक. स्पर्म बैंक में क्या हो रहा है, स्पर्म बैंक में यू कलेक्ट sperms from different types of donors, and these sperms can be preserved by a method what is called as cryopreservation. Students, cryopreservation मतलब क्या पता है? extreme cold temperatures, say for example -196 liquid nitrogen में, बहुत extreme cold temperatures में आप sperm के metabolic activity को एकदम almost negligible कर देते हो, जिससे sperm का shelf life जो है, मतलब जिंदा रहने का जो उसका टाइम है काफी बढ़ जाता है। So sperm banks में बहुत सारे अलग अलग sperm donors से sperms आते हैं और वहां पे आप स्टोर कर सकते हो by a method called as cryopreservation। या फिर द लास्ट मेथड कैन बी अडॉप्शन, कि एनीबडी, इंडिया में से कोई लीगल एज नहीं है अडॉप्शन के लिए, बट ऑन एन एवरेज इट इज रिकमेंडेड दैट अ पर्सन हु वांट्स टू अडॉप्ट द बेबी शुड बी अबाउ एटलीस्ट 21 years of age. So students, this is all about the methods and the process of what is called as the reproductive health, जहां पे अपन ने क्या क्या समझा। अपन ने सबसे पहले बर्थ कंट्रोल को समझा, बर्थ कंट्रोल में टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड्स देखे, then we talked about the medical termination of pregnancy, then we talked about the sexually transmitted disease, and then we talked about what is called as infertility. Students, ये मॉड्यूल खत्म करके we are actually finishing the chapter.
ठीक है। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट वगैरह है, कुछ आपको लिंक नहीं लग रहा है, प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से वीडियो 1 पे जाइए और वीडियो 1 से आप एक एक वीडियो देखते जाइए। जहां तक अपन ने कवर किया है ये सारा का सारा सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो मेजरली जितना कंटेंट आपको जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड सीईटी, वी हैव कवर्ड इट। Okay, so students, I would highly suggest that directly jumping onto बीच के videos will break your link. तो आप क्या करिएगा, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए एंड स्टार्टिंग से एक वन बाय वन यू कैन प्रोसीड। एंड एक बार आपने पूरा प्रोसीड किया, आई थिंक आपको चैप्टर मेजरली समझ ही आ जाएगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकूं। फिर भी अगर कहीं पे कुछ डाउट्स आ जाते हैं, कहीं पे आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती, please get in touch with us, and if at all you have any kind of specific doubt, कोई और मॉड्यूल्स में डाउट है या कुछ और जानना है, please put down in the comment section. I'll be very very happy to reply and help you. I hope ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर बायो का है वो हम लोगों ने खत्म करके आपको समझा होगा, एंड आई होप दैट आप सेम वापस नेक्स्ट चैप्टर जब अपन स्टार्ट करेंगे तो उसी के लिए भी आप मुझे मिलेंगे। ओके, सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, see you then, take care and bye bye.